Good morning, all of you. I am Miss Sharon Roshan from Trinity International School. So, today we'll be learning chapter 3, that is food and health. Good morning, all of you. I am Miss Sharon Roshan from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 3, that is food and health. So, let's begin. So there are five main components of food. So we'll learn what are those. First is carbohydrates. carbohydrates, carbohydrates. Second is fats, fats, fats. Third is proteins, proteins, proteins. Fourth one is vitamins, vitamins, vitamins. And fifth one is minerals, minerals, minerals. So this component food are also known as nutritions, is also known as nutritions, nutrients, are also known as nutritions. So these five component food are also known as nutrition. So these five components are also known as nutrient. RIENTS, nutrients. So it is also important to include roughage. Roughage is ROUGHAGE, roughage. So what is roughage? We'll learn what is roughage. roughage क्या होता है? हमारे बॉडी में जो फाइबर, जो भी हम खाते हैं, जो फाइबर प्रोवाइड कर फाइबर जो हम खाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हम खाते हैं, होल ग्रेन फूड कुछ खाते हैं, उससे फाइबर हमारे शरीर में जो कंज्यूम होता है, तो रफेज उसे क्या करता है, डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, एंड इट अलाउज टू पास अवे फ्रॉम आवर गट. And water in our food along with this nutrition to remain healthy. So water हमारे फूड को क्या करता है, जो सारे न्यूट्रिशंस हम जो खाते हैं अब्जॉर्ब करता है एंड अलाउज अस टू बी हेल्दी. वाटर हमारे शरीर में क्या काम करता है, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द न्यूट्रिशंस वॉट एवर वी ईट, उसमें से सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है एंड कीप्स अस हेल्दी. Good morning, all of you. I am Miss Sharon Roshan from Trinity International School. So today we are going to learn chapter 3, food and health. You can see here food and health. So here we are going to learn is five main components of food. First is carbohydrates, that is carbohydrates, carbohydrates. Second is fats, fats. Third is proteins, proteins, proteins. Fourth is vitamins, that is vitamins, vitamins.
and last one is fifth one, that is minerals, minerals, minerals. So carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are components also known as nutrients, that is nutrients, nutrients. So it is also important to include roughage, ROUGHAGE, roughage and water. So roughage, what does roughage do? roughage क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी चीज़ें खाते हैं, लाइक फूड में हम लाइक वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड, ये सब जब खाते तो हमारे शरीर में बहुत सारा फाइबर कंज्यूम हो जाता है, जिसके कारण इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट. सो रफेज क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शनिंग जो है बहुत अच्छा बेटर करता है. इट अलाउज टू पास द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर गट. एंड व्हाट डज वाटर डू इन आवर बॉडी? वाटर क्या करता है कि जो भी हम न्यूट्रिशंस खाते हैं वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, और इट हेल्प्स टू रिमेन हेल्दी. हमें क्या करता है, हेल्दी रहने में मदद करता है. सो विल गो टू next point, that is components of food. Components of food. First one is proteins. We'll learn about protein. So protein क्या करता है? So what are the source of protein? हमें प्रोटीन अगर खाना है तो what are we supposed to eat? So source क्या है, कौन से सोर्स से हमें प्रोटीन मिलेगा? That is we are supposed to eat eggs, मीट, फिश, मिल्क, चीज़, ये सब अगर हम खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं लोग, जिन्हें मसल्स गेन करना होता है, सो उनके जिम के इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उन्हें क्या डाइट फॉलो करने बोलते हैं? ज़्यादा करके उनके डाइट में प्रोटीन्स होता है. उन्हें क्या डाइट बोला जाता है? ज़्यादा करके एग खाना पड़ता है. उसमें भी एग में भी उन्हें एग वाइट खाना होता है, एग योक नहीं खाना पड़ता है फॉर प्रोटीन. मीट, फिश, ये सब खाना पड़ता है. तो ये सब खाने से क्या होता है, हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है. सो इसका फंक्शनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन? हेल्पिंग इन बिल्डिंग मसल्स एंड ग्रोइंग एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. क्या करता है? इट हेल्प्स टू गेन मसल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो रिपेयर्स आवर बॉडी. सो नेक्स्ट विल लर्न फैट्स. व्हाट इज फैट्स? फैट्स इज एनर्जी गिविंग फूड. व्हाट इसका सोर्स क्या होता है? फैट्स हम कैसे गेन करते हैं? क्या खाने से हमें फैट्स आ जाता है? दैट इज़ मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, मीट, ये सब खाने से क्या गेन होता है? फैट्स. सो इसका फंक्शनिंग क्या है? लेट्स सी हाउ डज इट फंक्शन. एक्ट एज फ्यूल्स एंड गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म. फैट से हमारे बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे हमारा बॉडी वार्म रहता है. सो नेक्स्ट विल बी लर्निंग मिनरल्स. सो क्या सोर्स से हमें मिनरल्स मिलता है? व्हाट इज मिनरल्स? इट इज़ प्रोटेक्टिव फूड. हम अब क्या खाने से हमें मिनरल्स मिलता है? जैसे हमने सीखा प्रोटीन्स, फैट्स खाने से कौन सी चीज़ें खाने से प्रोटीन्स एंड फैट्स मिलते हैं, वैसे हम मिनरल्स क्या खाने से हमें मिल सकते हैं? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, ये सब खाने से व्हाट वी गेट? मिनरल्स. देन हाउ डज इट फंक्शन इन आवर बॉडी?
हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। सो ये क्या काम करता है, इसका फंक्शनिंग क्या होता है? इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ टीथ। आपने देखा होगा बचपन में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका टीथ कभी ग्रो होता है, तो वो लोग जब मिल्क पीते हैं तो मिल्क के कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ होता है। सो टीथ ग्रो होते हैं एंड देन बोन्स एंड ब्लड, ये सारे चीज़ों का फॉर्मेशंस होता है व्हेन देयर इज मिनरल्स इन आवर बॉडी। सो नाउ विल बी लर्निंग कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? दैट इज एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी देता है सम टाइम। सो इसका सोर्स क्या होता है? सीरियल्स, ब्रेड्स, शुगर, पोटैटो, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। सो यू मस्ट हैव नोटिस कि समटाइम्स हम जब ब्रेकफास्ट नहीं खाते, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं खाते, व्हाट हैपन्स, हमें गिडीनेस फील होता है। वो क्यों होता है? हमें चक्कर आती है, हम चीज़ें नहीं ब्रेकफास्ट नहीं खाने के कारण हमें गिडी फील होता है, बिकॉज हमारे शरीर में शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट चीज़ें खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो होता है एक नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। उसके कारण हम एक नॉर्मल भी चाय अगर पी लेते, इफ़ वी ड्रिंक कॉफ़ी, तो क्या होता है, उससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। उसके कारण हमें क्या होता है, एक अच्छा लगने लगता है। वो क्यों अच्छा लगने लगता है? दैट इज़ बिकॉज वी कंज्यूम शुगर इन आवर बॉडी। नाउ विल बी लर्निंग vitamins. So what is vitamins? It is protective food. So what is the source of vitamins? Green leafy vegetables, fruits and fish. ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। So how does it function in our body? Help our body to fight with disease and keep it fit. क्या होता है? It allows to keep us fit. हम जब विटामिन्स हमारे शरीर में होता है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। जब इसका लेवल डाउन हो जाता है तो हमारे शरीर में डिजीज़ आना चालू होते हैं। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें नॉर्मली क्या देते हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स, विटामिन्स की टैबलेट्स। क्यों देते हैं? क्योंकि शरीर में विटामिन्स नहीं होने के कारण हमारे शरीर में डिजीज़ आना चालू होते हैं। सो जब विटामिन्स का लेवल नॉर्मल रहता है तो इट अलाउज अस टू कीप फिट। सो नाउ वी लर्न रफेज एंड वाटर। लाइक आई थॉट यू अर्लियर, दैट इज़ रफेज का सोर्स क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन फूड्स खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में फाइबर्स की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। सो इसका फंक्शनिंग क्या है? हाउ डज इट वर्क? हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम ये रफेज जो है क्या हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। एंड बाय रिमूविंग वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इज वाटर। सो वाटर क्या करता है? लाइक आई टोल्ड यू, इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। वाटर क्या करता है? सारी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है हम जो खाते हैं उसमें से, और इट अलाउज टू पास द वेस्ट इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. So now we'll be learning a balanced diet. So if you have not opened the book, so now we'll be learning balanced diet. So if you have not opened your book, so please open your book and remove page number 23. You can see the balanced diet diagram over there. So what is balanced diet? A diet that contains all the nutrients that our body needs to function properly in balanced amount along with roughage and water is called balanced diet. Basically अगर हम
ये बैलेंस डाइट की डायग्राम में जो सारी चीज़ें दिखाई गई है, दैट इफ़ वी ईट अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस डाइट देन ओनली विल बी हैविंग healthy and maintained body. A diet that contains all the nutrients that our body needs to function properly in balance amount along with roughage and water is called a balanced diet. ये डायग्राम में जैसे यहाँ पे बताया गया है, आपके बुक में जो शो किया है, ये सारी चीज़ें हम अगर प्रॉपर तरीके से खाते हैं तो ही हमारा बॉडी क्या होता है, मेंटेन रहता है. दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. सो द अमाउंट ऑफ फूड अ पर्सन नीड्स डिपेंड्स ऑन द एज एंड जेंडर एंड ऑन बॉडी साइज. अमाउंट ऑफ फूड, कौन सा फूड कितना अमाउंट में हमें खाना है, इट डिपेंड्स ऑन द एज and also the gender and the body size. So this food pyramid is a pyramid shaped diagram. Pyramid shaped diagram है, right? So which shows the components of food to be eaten every day in a balanced way. इधर जो सारे खाने हमें एक एक स्टेप पे जो दिए गए हैं, so it shows two components to food to be eaten every day in balanced way. It is also called a diet pyramid. It is also called a diet pyramid. So now I'll explain exactly a pyramid, what does it shows. मतलब क्या, मतलब क्यों ये पिरामिड हमें ऐसा शो करके डायग्राम दिया गया है. कुछ तो रीज़न होगा ना इसके पीछे. ये पिरामिड अगर हमें शो कर डायग्राम दिया गया है तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, राइट. सो विल लर्न व्हाट इट इज़. सो फूड कंपोनेंट शोन एट द बॉटम शुड बी इंक्लूड इन अ बल्क इन आवर डाइट. शुड बी इंक्लूड इन बल्क. बल्क मतलब क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें खाना है. जो लास्ट ऑन द बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो खाना दिया है, जो पिक्चर्स दिए गए हैं, वो हमारे डाइट में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना है, राइट. द नेक्स्ट विल लर्न इज हैज़ इट बिकम्स नैरोअर एंड रिप्रेजेंट्स द फूड वी शुड ईट लेस इन क्वांटिटी. इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ये पिरामिड नैरो होता गया है, वी हैव टू ईट लेस इन क्वांटिटी. फिर उसके ऊपर जो पार्ट है उसमें जो भी पिक्चर्स हमें दिए गए हैं वैसे हम उतना ही अमाउंट खाते जाना है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज सेड, इंग्लिश में क्या कहावत है, ईट लाइक अ किंग, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ईट लंच लाइक अ रिच मैन एंड ईट डिनर लाइक अ पुअर मैन. वाई इट इज़ सेड लाइक दैट, क्योंकि किंग जो है बहुत सारी चीज़ें खाता है, बहुत सारी चीज़ें उनके आगे पेश की जाती है, राइट. देन रिच मैन क्या करता है, जितना उसके पास हो सकता है उतना सारी चीज़ें लेकर आके खाता है, राइट. सो इट इज़ सेड लंच रिच मैन के जैसे खाओ. एंड देन पुअर मैन के पास क्या है, कोई ऑप्शंस ही नहीं होते, सो उसे पेट भरने के लिए कुछ भी खाना पड़ता है. सो इट इज़ इन वेरी लेस अमाउंट. सो इट इज़ बीन सेड लाइक दैट. सो नेक्स्ट इज fruits and vegetables form the largest part of the base and junk food forms the small part or at the top. तो largest part क्या होता है, vegetables and fruits का होता है. and smallest part, ये smallest part जो है वो किसका होता है, junk food का. that is of junk food. junk food हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है. it's very harmful for our बॉडी. सो इसीलिए पिरामिड डायग्राम में ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है, जंक फूड का है. दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू ईट जंक फूड. लेकिन आज के हमारे डेली लाइफ में हमें जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये पूरा पिरामिड का जो डायग्राम है जंक फूड से ही भर देते हैं. सो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, एल्स हमारा जो हेल्दी मेंटेन बॉडी नहीं रहेगा. सो नाउ विल लर्न इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग अ बैलेंस डाइट.
what we'll learn, importance of eating a balanced diet. So no single food is the best source of all nutrients. No single food is best of all source of all nutrients. So why it is said like that? It is said like that because eating a balanced diet increases the chance of getting essential nutrients to stay healthy. What does it do? It increases the chance of getting essential nutrients to stay healthy. A balanced diet gives our body the strength to fight with infection and diseases. Like I said while teaching vitamins, what is this कि जब हमारे शरीर में हर एक चीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं, so it allows our body to strengthen to fight infections and diseases. So together with exercise, a balanced diet helps us to maintain our body. It also helps to maintain our body. So exercise is very important in our day to day life. What happens, हम इतने बिजी रहते हैं, हम चीज़ें खाते हैं, हमारी बॉडी में कंज्यूम करते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स, लेकिन देर इज़ नो एक्सरसाइज इन आवर डे टू डे लाइफ, जिसके वजह से बॉडी क्या करती है, बॉडी वेट गेन कर लेती है. It reduces the chances of developing a condition called obesity. What is obesity? It is overweight. What is obesity? It is overweight. So when we do exercise and we have a proper balanced diet, it gives us energy to be active throughout the day. पूरे दिन हमें इतना energetic feel होता है because we are having a balanced diet and with that we are also doing exercise. So it also boosts our concentration and performance level. if अगर आप proper balanced diet खाते हो, थोड़ा सा exercise भी करते हो, तो what does it do? It also boosts our concentration and performance level. So now we'll learn ways of making our diet healthy. So क्या क्या तरीके हैं अगर हमें हमारा डाइट हेल्दी रखना है. So what we'll do to keep ourselves maintained. So we are supposed to avoid eating fried foods. फ्राइड फूड्स मतलब जंक फूड बहुत सारे रहते हैं जो मोस्टली फ्राइड होते हैं, लाइक पोटैटो चिप्स, मंचूरियंस. आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा मंचूरियन पसंद होता है. सो ऑल दिस आर व्हाट, फ्राइड फूड्स, जिसके कारण हमारा डे टू डे लाइफ और बिगड़ते जाता है और हमारा डाइट हेल्दी नहीं रहता. So reduce the amount of fats in your diet. If you reduce this fried foods, if you avoid these fried foods, then only आपके शरीर में fats नहीं होगा. So reduce the amount of fats in your diet. So next is eat a healthy and nutritious breakfast. हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट है वो वेरी इम्पॉर्टेंट मील है हमारे दिन का. So eat a healthy and nutritious breakfast to get energy to remain active. पूरे दिन थ्रू आउट द डे हमें अगर एक्टिव रहना है तो हमें ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने भी, और बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप कर लेते हैं. सो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो प्लीज़ कभी भी अपना ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है इफ़ यू वांट टू बी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. एड मोर होल ग्रेन फूड्स टू योर डाइट. मतलब कि होल ग्रेन फूड जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें हमारे डाइट में लेना है. अगर
हमें मेंटेन रहना है, अगर हमें हेल्दी रहना है तो ही। इफ़ मतलब कैसा होता है, आजकल बहुत सारे जगहों पे आप ख़रीदने जाते हो राइस या दाल वगैरह, हम जब खरीदते हैं वो पॉलिश्ड होता है। राइस में सिर्फ स्टार्च होता है, कुछ नहीं रहता है, बाकी चीज़ें उसमें कुछ भी नहीं रहता है, जिससे हमें हमारे शरीर को जो ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं मिलती। सो होल ग्रेन फूड क्या होता है? होल ग्रेन फूड होता है रेड राइस जैसा रहता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सो पॉलिश जो चीज़ें रहती है लाइक राइस जो होता है बहुत शाइन करता है। वो शाइन क्यों करता है? बिकॉज इट इज़ बीन पॉलिश्ड। एंड पैकेज्ड फूड जो रहता है, पैकेज्ड फूड हम जब खाते हैं उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स की वजह से क्या होता है, बहुत दिन तक वो फूड एक्सपायर नहीं होता है। आप समझो अगर हमने कुछ खाना बनाया घर में तो क्या वो एक हफ्ते तक रहता है? एक हफ्ते छोड़ो, 4 दिन तक भी रहता है? नहीं, वो ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? क्योंकि हम सारे अच्छी चीज़ें ऐड करके वो बनाते हैं, हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते। लेकिन जो पैक्ड फूड रहते हैं उसमें क्या होता है, केमिकल्स होता है, प्रिजर्वेटिव्स होता है, उसके कारण क्या होता है वो 6-6 महीने लास्ट करता है। सो आप बताओ मुझे कि केमिकल जो उसमें डाला गया वो फूड हमारे सेहत के लिए अच्छा है, या हम जो घर पे बनाते हैं दाल राइस चपाती ये सब जो हम बनाते हैं ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है? प्रिजर्वेटिव्स में ऑब्वियसली केमिकल्स डाले हुए, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सो नेक्स्ट इज अवॉइड एडिंग टू मच सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस एंड ऑयल टू योर फूड। अवॉइड एडिंग टू मच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ज़्यादा होने से भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा शुगर खाने से भी प्रॉब्लम होता है। हम इंडियंस को स्पाइसेस बहुत पसंद होते हैं, राइट? तो स्पाइसेस भी खाने से हमारे शरीर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम जब चाइनीज़ वगैरह खाते हैं तो कैसे उसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्पाइसी वाले खाते हैं, तो सेजवान वाले चीज़ें जो होती है वो सारी स्पाइसी होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ज़्यादा ऑयली, मोस्टली चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, जब हम नूडल्स वगैरह खाते हैं तो बहुत सारा ऑयली होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑयली होती है। सो अवॉइड ईटिंग दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो डू नॉट ओवर ईट फूड, डू नॉट ओवर ईट और ईट आउटसाइड टू ऑफ्टन। सो अगर हम जब ओवर ईट भी कर लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब अगर एक तो है कि अगर आप खाना नहीं खाओ दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, और एक है कि ओवर ईट कर लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। देयर आर समटाइम्स कि हमारा मनपसंद एकदम चीज़ें जो फेवरेट हो जाती है, उस चीज़ें जब हमारे सामने आते हैं लाइक चिकन, गुलाब जामुन, ऐसे सारी चीज़ें आती हैं तो हम क्या करते हैं फटाफट पूरी चीज़ें खा लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग जो काम वर्किंग है वो लोग क्या करते हैं बाहर से ही ज़्यादा खा लेते हैं, बाहर से ही चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। ईट स्प्राउट्स और मूंग, बीन्स एंड व्हीट। तो ये क्या करता है हमारे बॉडी में इट प्रमोट्स गुड हेल्थ ड्यू टू देयर हाई न्यूट्रिशन कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम खाते हैं लाइक स्प्राउट्स, मूंग, बीन्स, व्हीट, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में हाई न्यूट्रिएंट देता है। सो ईट फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा, ढोकला एंड ड्रिंक फर्मेंटेड ड्रिंक्स लाइक लस्सी, योगर्ट, जूस रेगुलरली। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हमारे बॉडी में डाइजेशन करने में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। सो रिप्लेस एरेटेड ड्रिंक्स। सो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव फ्रेश कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस एंड लाइम वाटर. So we'll have eat fruit, salads, nuts or sprouts in between meals instead of having unhealthy snacks. Have small portion of food at regular intervals. What? इसका मतलब क्या है, स्मॉल पोर्शन में हमें दिन में कई बार
स्मॉल पोर्शन में खाना खाना है। खाना मतलब क्या, पूरा खाना नहीं खाना है, मतलब लाइक स्प्राउट्स, सैलड्स, फ्रूट्स, बीच में एक एप्पल खा लिया, बीच में मतलब 2 घंटे के बीच में, 3 घंटे के बाद, ऐसे अगर हम खाते हैं तो व्हाट हैपन्स कि हमारा जो डाइट है वो मेंटेन रहता है और वी मेंटेन एंड कीप आवरसेल्फ हेल्दी। So we'll come to next point, that is junk food. So what is junk food? Junk food contains high amount of sugar, starch and fats. जंक फूड में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, शुगर, स्टार्च एंड फैट्स, विच इज़ अगेन लो अमाउंट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन इट. Snack foods like candies, sweet desserts, fried fast food, potato chips are some examples. May be delicious but they do not provide any nutritional benefit. ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है, हमारे शरीर के लिए कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होते, लेकिन क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर में जमा हो जाता है. फूड गेट स्टोर्ड इन द बॉडी. दिस में लीड टू बी ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये क्या लीड करेगा, ओबेसिटी. आई थॉट यू ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा हो जाता है, हमारे शरीर फूगना चालू कर देता है. क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब खाते हैं, लाइक शुगर, स्टार्च, फैट जब हम खाते हैं तो इट लीड्स टू ओबेसिटी एंड ऑल्सो अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. जब हम मोटे हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें खाने से क्या हो जाता है, बहुत सारे अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आना चालू हो जाती है. सो नाउ विल लर्न एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड. तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ जंक फूड मतलब डिस इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड मतलब इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये सारी चीज़ें खाने से हमें क्या होता है, मोटापा हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है. सो इट लीड्स टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. इट डज़ नॉट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू डू वर्क. ये सारी चीज़ें खाने से हम हेल्दी नहीं रहते. इससे क्या होता है, हमें एनर्जी नहीं मिलता है काम करने के लिए. वॉट एवर वी डू, इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, तो हमें ये सारी चीज़ें खाने से, जंक फूड जो है इसे हम खाते हैं तो इससे हमें एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती है. इट रिजल्ट्स इन पुअर डाइजेशन एंड मेक अस फील लेज़ी. तो क्योंकि अगर हम जंक फूड खाते हैं तो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली होता नहीं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत ऑयली होता है. इसके कारण क्या होता है, वो प्रॉपर्ली हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है. इसके वजह से हमें लेज़ी फील करते हैं. इट मेक अस फील फुल, reducing our intake of healthy and nutrition rich food. सो अगर हम कुछ चटर पटर खा लेते हैं शाम के टाइम पे तो फिर हमें घर जाकर खाने की इच्छा नहीं होती है. नॉर्मली बेसिक एग्जांपल है, हम जो वड़ा पाव खा लेते हैं, सबको वड़ा पाव बहुत पसंद है, राइट. तो ये वड़ा पाव वगैरह हम खा लेते तो घर पे जाके मम्मी ने हेल्दी फूड जो बनाया होता है, दाल, चावल, राइस, चपाती, ये सब हमें खाने का इच्छा नहीं होता है. सो दैट मीन्स फुल reducing our intake of healthy and nutrient rich food. So now we'll learn diseases related to our food habits and lifestyle. Eating lots of junk food, lack of exercise and other physical activities, the way people live their life are called lifestyle diseases. Lifestyle diseases like क्या, कौन से disease होते हैं, obesity, diabetes, high blood pressure, anemia and several heart diseases are the most common lifestyle diseases. So ये lifestyle diseases हमें क्यों आती है, क्योंकि हमारे शरीर में हम बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं. आजकल छोटे बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें होते हैं, मोटापा होता है. सो ये क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत, हमारा जो हेल्दी लाइफ नहीं है, हेल्दी मेंटेन बॉडी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड इनटेक करते हैं. इसके कारण क्या होता है, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हमें बहुत जल्दी हो जाती है. सो नाउ विल लर्न व्हाट इज़ ओबेसिटी. So obesity is unhealthy condition of being very fat or
overweight? It is because due to overeating, eating unhealthy food and reduced physical activities. So major health concern among children and adults are may develop other lifestyle diseases such as heart disease and diabetes. So let's learn what are the symptoms of it. Unhealthy weight gain, laziness, breathing problems, increased sweating and difficulty in doing daily activities. This is all because of overeating and eating unhealthy food. ये सारी चीज़ें क्या है, हम जब ओवर ईट कर लेते, ओवर ज़्यादा खा लेते या फिर हम जब अनहेल्दी चीज़ें करते और हमारे डे टू लाइफ में बहुत कम फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, दैट इज़ व्हेन वी गेट ऑल दिस डिजीज़. सो नाउ विल लर्न डायबिटीज़. सो डायबिटीज़ हमारे शरीर में क्यों होता है और कब आता है? द बॉडी फेल्स टू यूटिलाइज द शुगर प्रेजेंट इन blood. So we'll learn diabetes. So diabetes हमारे शरीर में कब आता है? So where the body fails to utilize the sugar present in blood. So nowadays it is fastest growing lifestyle disease. Obesity, stress and lack of physical activity के कारण these are the major cause of diabetes. Excess sugar in the blood can lead to other diseases like heart disease and blood pressure. अगर हम शुगर ज़्यादा इंटेक करते उसके कारण भी हमें दूसरे डिजीज़ हो सकते हैं, दैट इज़ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज़. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर इंक्रीज द थर्स्ट. हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, यूरिनेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट इज़ व्हेन इज सेड कि डायबिटीज़ हुआ है. नाउ वी लर्न हाई ब्लड प्रेशर. सो हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, ग्रोइंग हेल्थ प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स. ये क्या है, आजकल छोटे बच्चों को भी होता है और अडल्ट्स को भी होता है. Caused due to obesity, lack of exercise, disturbed sleep. It may lead to other health related problems such as heart disease, stroke and kidney disease. So इसका symptoms क्या है? Headache, dizziness, chest pain, irregular heartbeat. ये सारे symptoms है. ये सब सारी चीज़ें जब होती है तो what it is? High blood pressure. So now we'll learn anemia. So what is anemia? Anemia is a condition in which person is suffering from it. It looks pale and often feels weak or dizzy. This is because of lack of iron in the diet which it requires for the formation of blood in the body. So what are the symptoms? Symptoms are headache, dizziness, breathlessness, टायर्डनेस एंड पेल स्किन. सो जब हमारे बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा कम होता है, इट लीड्स टू अनेमिया. सो नाउ वी लर्न प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट विद दिस लाइफस्टाइल डिजीज? ईट अ बैलेंस्ड डाइट. what we are to do? Eat a balanced diet. An easy way to prevent lifestyle disease are eat a balanced diet and avoid eating junk food. Like I said, junk food is not healthy. It is very harmful for our body. So avoid eating junk food that has low nutrient contents. Eat food in small portions. स्मॉल पोर्शन मतलब आपको थोड़ा थोड़ा खाना है. हम हरी भरी में क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और खेलने जाते हैं. हमें जो भी काम कुछ करना होता है तो हम बहुत जल्दी हरी भरी में खा लेते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो ईट इन स्मॉल पोर्शन एंड chew it properly. Never skip a meal to stay fit. You are not supposed to skip any meal to stay fit. Drink plenty of water to remove waste from your body.
अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ही हमारा बॉडी बहुत मेंटेन रहता है, बिकॉज पानी क्या करता है, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। इसीलिए हम जब बीमार रहते हैं वो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पानी हमें पीना है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, हमारा बॉडी में से हर एक वेस्ट निकलने से हमारा बॉडी क्या होता है, मेंटेन रहता है। अवॉइड टू मच इनटेक ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट्स इन योर मील। हम जब जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें से बहुत शुगर, सॉल्ट, फैट्स जिसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमें बहुत कम खाना है, अवॉइड करना है ये सारी चीज़ों को। तो इससे लाइफस्टाइल डिजीज़ से हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रिवेंशन मिलेगा। मेंटेन अ हेल्दी वेट बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या है, हेल्दी वेट बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। हमें क्या करना है, अगर हेल्दी वेट मेंटेन करना है तो वी आर सपोज टू डू रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज करना है। Do not spend too much time on TV or working or playing games on computer and phones. Get proper and sufficient sleep of about 6 to 8 hours daily. अगर हमें प्रॉपर स्लीप मिलता है, अगर हम प्रॉपर स्लीप नींद अगर लेते हैं 6 to 8 hours डेली, तो विल बी एबल टू मेंटेन आवर डाइट। Go for regular health checkups to find out the state of your health. Do some yoga or meditation to remain stress free and relaxed. अगर आप योगा, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करते हो तो आप क्या करते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फ्री हो जाता है और रिलैक्स फील होता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है करना आपके डे टू डे लाइफ में। So what is deficiency disease? Our body needs all the nutrition to function properly. अगर हमारे शरीर में हम सिर्फ प्रोटीन खाएंगे, एक ही चीज़ खाएंगे, प्रोटीन खाया और विटामिन नहीं खाया, so what happens, there is a lack of any nutrient in the body, diseases that are caused due to lack of certain nutrition. तो क्या होता है, क्योंकि हम एक ही चीज़ कंटिन्यूसली खा लेते हैं, या फिर प्रोटीन खा लिया तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स ये सब चीज़ें नहीं खाते। तो एक ही चीज़ खाने से, या फिर हम 4 चीज़ खा रहे हैं और उसमें से 5th वाला नहीं खा रहे, तो उसके कारण क्या होता है, कुछ समय के लिए, बहुत टाइम के लिए हम एक चीज़ नहीं खाते, तो व्हाट हैपन्स इन द डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. So now we'll learn some common deficiency disease. That is, deficiency disease we'll learn caused due to the deficiency of symptoms of the disease, diet to prevent the disease. So for deficiency disease caused due to deficiency of proteins, fats and carbohydrates. So symptoms of this disease are swollen stomach, thin legs, swollen ankles and feet, reduced growth and anemia. So source of these are pulses, eggs, lentils, fish, milk and rice, marasmus. Proteins and carbohydrates. Weight loss, poor muscles, anemia, shrunken eyes, loose and dry skin and consistent thirst. We can source this or prevent this disease with pulses, eggs, milk, meat and cereals. If we eat this pulses, egg, milk, meat and cereals, we can prevent with this disease. So night blindness. Next is night blindness. So vitamin A caused due to a deficiency of vitamin A. Poor vision in dim light. Diet to prevent the disease: green leafy vegetables, carrots, mangoes, milk, butter and egg yolk. Berry, vitamin B1. Weight loss, weakness, weak muscles and irregular heartbeat. So we can prevent this with intaking beans, fish, meat, whole grain, nuts, milk and vegetables. Scurvy, vitamin C. Swollen and bleeding gums.
Citrus food and vegetables like orange, lemons, strawberries, amla, tomatoes, potatoes and broccoli. Next is rickets. Vitamin D. Soft and weak bones, bow shaped legs and weakness. Milk products, eggs and fish. Exposure to sunlight is also helpful in prevention of rickets as it helps in the formation of vitamin D in the body. Anemia, again I taught you this, right? So it's because of lack of iron, tiredness, dizziness and weakness. So we can prevent this anemia with intaking of green vegetables, apple, banana, liver, egg yolk and jaggery. Goitre is lutein. Swelling in neck, poor growth and development of body. Lodest salt and seafood. So next we are going to learn food adulteration. So what is food adulteration? Food adulteration refers to the action of making food or drink impure and unsafe by adding unwanted substances to it. It also decreases the quality of food, lowers its nutritional content. Any substances that decrease the purity and quality of food is called an adulterant. Adulterant increase the impurity of food and are also harmful, cause health problem and can affect the quality of life. So now we'll learn what are the reasons of food adulteration. To the unwanted substances are added to food and drinks for the following reasons. So what are those reasons? To increase the quantity of food, to make more profit by selling the adulterated food. So have you ever seen if you buy apple, तो एप्पल के ऊपर एक वैक्स होता है. सो आप जब हम घर में लाते हैं उसे वॉश करते हैं तो आप पानी उसके ऊपर से डालोगे तो एप्पल के ऊपर से डायरेक्टली फ्लोट होकर वाटर नीचे आ जाता है. क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ उसको पूरा वैक्स से कवर किया गया था. बिकॉज वो अगर शाइन होगा, अच्छा दिखेगा, रेडिश कलर में रहेगा तो हमें वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और जो बायर्स हैं उसे बाय करेंगे सेलर्स से, राइट? सो टू मेक food more attractive to the buyers, to make more profit by selling the adulterated food. Those are the reasons for food adulteration.